Assalamu alaikum, dear student. This is ceramics, a new topics. Uh, ये डेंटल मटेरियल इसके बाद जो है ना डायरेक्ट गोल्ड फैलेंगे और इंशाल्लाह फिर आपका कोर्स ख़त्म हो गया और फिर मैं दोबारा कोशिश करूँगा कि इम्पॉर्टेंट MCQs और ये आप लोगों को बता दूँ, ठीक है। हाँ, लेकिन आप जो है ना अभी से स्टडी स्टार्ट करें। तो सिरामिक जो है ना क्या चीज़ है? द वर्ड सिरामिक इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड keramos, which literally means burnt stuff. Burnt stuff, a material which has been produced by burning and firing. तो ये एक ऐसी मटेरियल है जिसको बर्न स्टफ भी कहते हैं और ये बर्निंग या फायरिंग से प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक मटेरियल which are crystalline in nature and compounds formed between metallic and non-metallic elements such as aluminum and oxygen, the alumina oxide, calcium oxide, silicon and nitrogen, silicon oxide और इस तरह nitrates. So ceramics are characterized by their refractory nature, hardness, chemical inertness, biocompatibility, but susceptible to fracture. तो ये जो है ना हार्ड भी है, एक बायोकम्पेटेबल भी है, एस्थेटिक भी है, लेकिन ये फ्रैक्चर हो जाता है, ब्रिटल है। Ceramic contain compound of oxygen with one or more metallic or non-semi-metallic elements like alumina, calcium, lithium, magnesium, phosphorus, potassium, silicon, sodium, zirconium and titanium. तो ये टाइटेनियम तो इम्प्लांट में यूज़ होते हैं। जरकूनिया जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की सिरामिक्स है, टाइप्स हो, और इससे आप क्राउन ब्रिजेस बहुत एस्थेटिकली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये कंटेन कंपाउंड्स लाइक दीज थिंग्स। In dentistry, ceramic are widely used for making artificial denture, teeth, crowns, bridges, ceramic post, abutment, implants and veneer. तो यूजेस याद रखें सिरामिक्स, ठीक है। ये तो आर्टिफिशियल डेंचर जो है ना पार्शल हो कंप्लीट हो तो आर्टिफिशियल टीथ भी बन जाते हैं, पोर्सिलिन टीथ उसको कहते हैं। क्राउन भी जो है ना टूथ के ऊपर क्राउन भी जो है ना, ब्रिजेस जो है ना मिसिंग टीथ के लिए, सिरामिक पोस्ट अगर RCT करते हैं और तो उसमें फिर हम पोस्ट एंड कोर बनाते हैं तो वो सिरामिक से भी बनता है। और इम्प्लांट्स में भी यूज़ होता है, इम्प्लांट और विनियर भी इनसे बन जाते हैं, ठीक है। द टर्म पोर्सिलिन इज referred to a specific ceramic made by mixing kaolin, quartz, feldspar in proper ratio, fire and high temperature. High temperature पे ये फायर करते और इन मटेरियल से बना है। According to their high fusion temperature, porcelain are classified as high fusion ceramic, medium fusion ceramic, low fusion ceramic and ultra low fusion porcelain are ceramics. Now classification of various dental porcelain and their clinical use. High fusion porcelain fusion temperature range from 1300 to 1400 degree centigrade, use in denture teeth में बनाते, ये पोर्सिलिन के हैं, ठीक है। मीडियम फ्यूजिंग टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 1000 to 1300 डिग्री एंड यूज फॉर जैकेट, क्राउन, ब्रिजेस एंड एनलेस। लो फ्यूजिंग पोर्सिलिन फ्यूजन टेम्परेचर इज रेंजिंग फ्रॉम 850 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड और इससे बनते हैं विनियर एंड कास्ट मेटल क्राउन। Low fusing porcelain fusing temperature is 850 to less than 850
and used with titanium and its alloy. Porcelain firing, ये किस तरह करते हैं फायरिंग? द पोर्सिलिन फर्नेस, इसमें के लिए पोर्सिलिन फर्नेस बटाई छोड़ दो, उसमें ये पोर्सिलिन फर्नेस फॉर फायरिंग कंसिस्ट, तो पोर्सिलिन फर्नेस इज यूज्ड एंड इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकली हीटेड मफल विद पायरोमीटर जो हीट टेम्परेचर डिटेक्ट करता है, शो करता है, विच इंडिकेट्स temperature in that part of the muffle when porcelain is placed. Modern porcelain furnace allow firing under vacuum, which reduces the porosity 4.6 to about 0.5%. Porcelain is a poor conductor of heat and is brittle. Rapid cooling will result cracking and loss of strength. Property of porcelain. It is an aesthetically perfect material for the replacement of missing natural interior teeth, especially interior teeth. Natural teeth है लेकिन interior teeth के लिए, posterior के लिए porcelain fused to metal teeth अक्सर यूज होते हैं. तो ठीक है, porcelain teeth भी थ्रू डेंचर में यूज़ होते हैं, लेकिन ये पोस्टीरियर टीथ पे ब्रिटल करते हैं ज़्यादा, उस पर ऑक्लूजल स्ट्रेसेस आते हैं. तो बहरहाल पोर्सिलिन टीथ यूज़ होते हैं और ये एस्थेटिक है बहुत. अवेलेबल इन वेरियस शेड्स एंड ट्रांसलूसेंसी एंड लाइफ, ये लाइट नहीं है, ये लाइफ लाइक अपीयरेंस है. लाइफ लाइक अपीयरेंस मीन्स नेचुरल लुक्स, नेचुरल लाइक अपीयरेंस. तो इट इज़ लाइट नहीं है, लाइफ है. पोर्सिलिन इज़ वेरी रिजिड, हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल है. टूथ प्रिपरेशन फॉर पोर्सिलिन क्राउन शुड बी डिज़ाइन टू रिड्यूस ऑल स्ट्रेस एरियाज. इंटरनल लाइन, ये लाइन नहीं है, लाइन एंगल है, मस्ट बी मेड राउंडेड. तो अगर पोर्सिलिन की आपने क्राउन लगाने है ब्रिज, तो उसमें सारे जो है ना स्ट्रेस एरिया कम करना चाहिए क्योंकि ये ब्रिटल है. और इंटरनल लाइन एंगल, तो टूथ प्रिपरेशन करते हैं तो वो उसमें एक एक्सटर्नल लाइन एक इंटरनल लाइन, तो इंटरनल लाइन एंगल मस्ट बी मेड राउंडेड, शार्प नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे फिर क्राउन ब्रिज जो है ना ब्रिटल होगा और टूट जाएगा. द जंजाइवल फिनिश लाइन शुड हैव स्मूथ शोल्डर. और जो जंजाइवल फिनिश लाइन है टूथ प्रिपरेशन में, उसमें शोल्डर होगा. जिस तरह आपके शोल्डर है तो इस तरह शोल्डर टाइप जो है ना जंजाइवल फिनिश लाइन पे शोल्डर बनाना पड़ेगा. पुअर मैकेनिकल प्रॉपर्टी इज इम्प्रूव्ड बाय एडिंग एल्यूमिना और मेटल स्ट्रक्चर. और इसकी जो है ना मैकेनिकल प्रॉपर्टी के लिए ऐड करते हैं मेटल स्ट्रक्चर या एल्यूमिना. द हार्डनेस ऑफ पोर्सिलिन रेजिस्ट एब्रेजन बट काजेस एट्रैक्शन, ये एट्रीजन है. अच्छा, कुछ टाइप में मुझसे गलती हुई, एट्रीजन और एब्रेजन ऑफ द अपोजिंग टीथ. पोर्सिलिन टीथ जो है ना ये काफ़ी हार्ड होते हैं, तो ये खुद जो है ना एब्रेजन, इसकी एब्रेजन नहीं होती, लेकिन जो है ना बट इट काजेस द एब्रेजन द एट्रीजन और एब्रेजन ऑफ अपोजिंग टीथ. तो लेकिन ये नीचे अगर एक जा में आपने पोर्सिलिन टीथ लगाए हैं तो ख़ुद तो ये एट्रीजन या एब्रेजन नहीं होगा, लेकिन अपोजिंग टीथ अगर नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो तो उसकी एट्रीजन भी करते और एब्रेजन करते हैं उसको, क्योंकि ये हार्ड है, ख़ुद तो ब्रिटल है लेकिन ख़ुद एब्रेजन नहीं करता, लेकिन दूसरी अपोजिंग टीथ जो है ना दूसरे उसकी जो है ना एब्रेजन करते हैं. मतलब है कि अगर आपने लोअर जा में पोर्सिलिन टीथ लगा दिए और अपर नेचुरल टीथ है तो अपर नेचुरल टीथ को ये एट्रीजन करते हैं और एब्रेजन भी करते हैं. एट्रीजन एब्रेजन तो आप जानते हैं बिल्कुल, वियर जिसको कहते हैं, थोड़ा सा वियर करते हैं. पोर्सिलिन इज गुड थर्मल इंसुलेटर एंड हेयर
resistance to chemical attack. And bear, BEAR, bear here नहीं है. Porcelain is a good thermal insulator है. It bear resistance to chemical attack, और इस पर कोई chemicals चीज़ जो है ना इस पर अटैक नहीं कर सकते क्योंकि ये resist करता है chemical attack को, कोई chemical चीज़. Property porcelain गुड बायोकम्पेटेबल, नॉन टॉक्सिक टू म्यूकोजा. मुंह में अगर आपने इसको टीथ या लगा दिए या ब्रिज या क्राउन तो ये नॉन टॉक्सिक भी है, बायोकम्पेटेबल है. प्योर एल्यूमिना इंसाइड एडेड टू पोर्सिलिन क्राउन टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड एक्ट्स एज क्रैक स्टॉपर ऑफ पोर्सिलिन. तो इसके लिए इसमें प्योर एल्यूमिना ऐड करते हैं और ये क्रैक इसमें नहीं आते हैं. The alumina content is about 40%. Types are of नहीं है, are classification of porcelain. ठीक है, types are classification of porcelain. तो ये नंबर 1 है alumina insert aluminous porcelain. Aluminous porcelain. Unreinforced porcelain. Cast glass polycrystalline ceramics, sintered alumina core ceramics, sintered alumina with zirconia, pressed glass with lucidity है, LEUCITE lucidity, pressed glass with lucidity. ये टाइप्स है इसकी मुख्तलिफ. और यूरियम टेट्रागोनल जर्कोनिया पॉलीक्रिस्टल. ठीक है, मिनिमम फॉर कोर सिरामिक, फॉर की नहीं है, मिनिमम कोर सिरामिक्स, FOR जो है ना ये नहीं है. मिनिमम फॉर डेंटिन सिरामिक एंड एनेमल सिरामिक्स. तो ये 9 किस्म की टाइप से क्लासिफिकेशन है. टाइपिंग पे जो पॉइंट्स मैंने करेक्ट किए वही आप नोट करें. तो पोर्सिलिन की यूजेस बहुत इम्पोर्टेंट हैं. पोर्सिलिन की प्रॉपर्टीज़ ब्रिटल है लेकिन गुड बायोकम्पेटेबल है, नॉन टॉक्सिक है, बहुत एस्थेटिक है. ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट है. एस्थेटिक है, बायोकम्पेटेबल है और हार्ड है और एब्रिजन नहीं होती इसकी. लेकिन ये नेचुरल टीथ की को एट्रीजन एब्रिजन करते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब ये पार्ट 1 है क्योंकि ये बहुत लेंथी चैप्टर था तो ये इसको फिर मैंने 2 में डिवाइड करना है किया है और नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर सेकंड लेक्चर होगा. लेकिन आप स्टडी करिए. अच्छा, ओके.